you the slide manual metal arc welding. Okay. I hope you are able to see this manual metal arc welding slide. It is in front of you. Yesterday we were watching this. Uh, in this slide, yesterday we saw this is also known as arc welding. Arc welding in arc welding process, this is the first process. So manual metal arc welding means where you can see this setup is shown here. Equipment for MMA welding. So this setup is shown where you can see here electrode holder. Okay, this is the welding lead. This is connected to negative terminal of the transformer or welding machine. Then this is the electrode holder which is holding the electrode. First 40 mm to 50 portion is bare metal electrode. That metal is directly in contact with your welding this holder, electrode holder, and after that there is flux coating on the electrode. Now, if electron is let us say 1 feet or 1.5 feet, then you can see that first 50 is a bare metal, and then the electrode coating is there, so that the metal should be directly in contact with the electrode holder, and negative current will be easily passed through metal. That's why it is there. Uh, and at last, what happens? This electrode burns, and only the small piece which is in the electrode holder is to be thrown away. That is used later on. Again, it can be reused for electrode making, or it is used for some other melting purpose, because that is metal piece. Okay. आप बोलेंगे ये यूज क्यों नहीं होता लास्ट वाला 50 पीस? आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम एंड में आया ना। आप लोगों का आर्क वो इतने नजदीक होगा कि आपका ग्लोव्स भी जल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आर्क आ जाएगा, हाँ। एंड फ्रॉम दैट आर्क दैट हीट दैट एज यू कम क्लोजर क्लोजर क्लोजर, यहाँ पे ये डिस्टेंस आने तक आपको गर्मी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपका हैंड यहाँ पे है आपका, और यहाँ से हीट बोले तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लास्ट का एक 50 हम थ्रो करते। इसलिए आप लोग वेल्डिंग शॉप में कभी गए तो आपको छोटे छोटे वो टुकड़े मिलेंगे, वो इलेक्ट्रोड के है, आखिर का पीसेस, सो लास्ट पीसेस है वो सब। तो जमा करके बाद में रीयूज करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने वाले कंपनी को जाता है, या फिर और किसी दूसरे कंपनी में रीयूज के लिए, रीमेल्टिंग के लिए जाएंगे। तो ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है हमारा। ये इस पे वर्क पीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। देयर इज अ सेपरेट अर्थिंग to the table on which your workpiece is kept. This is coarse selector for current. This is fine current selector, and this is the power supply unit. Okay, welding. So this is a setup. Okay, in the process, what happens? Yesterday I explained you. You can see here the welding direction is also shown from left to right, and this is the longitudinal direction of weld. So this is a solidified slag. This flux material is melting. It's making a gaseous shroud in the welding process, and after completion of weld, it makes a slag. Slag is a part which is हाँ एलएमएस पे less denser। एलएमएस पे लिंक है। एल एलएमएस पे भी है और इसमें भी है। उसको बोल, वो क्या कहते हैं इसको, अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी दिया है, हाँ? उसको बोल, हाँ, जो भी उसको एक्सेस है। आ बोल कि तो ढूंढ रहा है बेचारा। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है। चलो, लेट्स कंटिन्यू। ये सॉलिडिफाइड स्लैग ऊपर फ्लोट होता है क्योंकि उसका डेंसिटी अपने वेल्ड मेटल से कम है। हाँ, तो वेल्ड मेटल जैसे ही ठंडा हो जाएगा, हम लोग स्लैग बाद में निकाल देंगे। स्लैग ऐसा चिपिंग हैमर रहते हैं ना। चिपिंग हैमर आपने देखा होगा कि ये अपना रेगुलर हैमर है, ऐसा हेवी रहता है। चिपिंग हैमर क्या है, ऐसा फ्लैट थोड़ी ऐसी चकती रहेगी, और उसको ऐसे हैंडल रहेगा। तो हैंडल से ऐसे उसको साइड से ऐसा थोड़ा सा ये करेगा, तो वो मेटल पे ऐसा मार नहीं बैठेगा, लेकिन साइड से अपना थोड़ा सा साइड से मारेगा, तो सॉलिडिफाइड वो स्लैग जो है वो निकल जाएगा। अभी स्लैग के कुछ कुछ पोर्शन वो वेल्ड वेल्ड पोर्शन में ऐसे दब जाएंगे,
तो उसको आप वायर्ड जो ये रहते हैं ना, वायर ब्रश से ऐसे घिस घिस के उसको निकाल देते हैं। या फिर उसके बाद में पॉलिशिंग का ऐसा वायर व्हील से आप ये करोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद है ना हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। फ्लश ग्राउंड मीन्स व्हाट, आप जब वेल्डिंग मारोगे तो उसका थोड़ा सा पोर्शन कॉन्वेक्स होगा। मतलब आपके जो दो बेस प्लेट रहेंगे, दो प्लेट आपको जोड़ने हैं, तो उसका जो लेवल रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ऐसा क्राउन क्राउन आ जाएगा ना, वेल्ड आपने देखा होगा। तो उसको फ्लश ग्राउंड करते हैं, यानी साइड वाले प्लेट को एकदम उसी के लेवल में उसको ग्राउंड करते हैं। दैट इज नोन एज फ्लश ग्राउंड। ओके, these are special words for our welding flush ground. तो फ्लक्स का फंक्शन क्या क्या है? इट्स प्रोटेक्ट द वेल्ड फुल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक contamination, particularly oxygen and hydrogen. It makes the gaseous shroud, which is reducing in nature, and that's why it protects the weld full from atmospheric contamination. It makes a solidified slag. It makes a slag. That slag floats on the completed weld metal, and it also protects the completed weld metal from oxygen contamination till it cools. एक बार वो कूल हो गया तो फिर आपको कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर घुसने का जो ये है फंक्शन, वो एट एलिवेटेड टेम्परेचर है। एक बार वो रूम टेम्परेचर आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा फंक्शन ऐसा है फ्लक्स में आप लोग वो जो फ्लक्स पाउडर है उसमें आप एलोइंग एलिमेंट पे भी डाल सकते हैं। तो फ्लक्स के द्वारा आपके वेल्ड में क्योंकि फ्लक्स में जो ये सॉलिड वायर जो मेल्ट होता है उसी के साथ फ्लक्स भी मेल्ट होता है। तो फ्लक्स में अगर आपने एलोइंग एलिमेंट डाले तो वो एलोइंग एलिमेंट भी वो वेल्ड में मिक्स हो जाएंगे। तो आपका जो नेसेसरी प्रॉपर्टी है वो इसका वेल्ड का, वो आपको ये हो जाएगा। मतलब आप अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ क्रोमियम वगैरह डाला, मॉलिब्डेनम थोड़ा सा डाला, तो उसको जो हमको इम्पार्ट होने वाला प्रॉपर्टीज है इससे क्रोमियम या मॉलिब्डेनम से, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ये भी फंक्शन है इसका ये फ्लक्स का, कि फ्लक्स इट प्रोटेक्ट्स द weld metal from atmospheric contamination, and it also helps in adding alloying element, and helps in achieving the necessary property in the weld metal। तो ऐसा काम अपना फ्लक्स कर देता है। तो फ्लक्स शील्डिंग, तो शील्डिंग कैसा है? इसमें फ्लक्स शील्डिंग है। फ्लक्स मेल्ट होके गैसियस राउड बनाता है, एंड इट शील्ड्स द molten metal from atmospheric contamination, that is oxygen, hydrogen and nitrogen. Nitrogen is not so detrimental, but oxygen and hydrogen are। okay, हाइड्रोजन से पोरोसिटी तैयार होगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स तैयार होगा। वो डेट्रीमेंटल है अपने वेल्ड लाइफ के लिए। वेल्डिंग में क्रैक जा सकते हैं बाद में। हाइड्रोजन से पोरोसिटी आ सकता है। तो ये आपका ये हो गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका प्रॉपर्टी अगर हमने देखा तो नीचे ऐसा, दिस स्लाइड्स आई हैव टेकन एज इट इज। अगर 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 इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन है होगा ना, तो ये एकदम स्टार्ट पे मैं जब आया था सोमया में, तो ये स्लाइड 93 में मैंने बनाना, 92 में बनाया था। 92 में इमीडिएटली मेरे को दिया था ये सिखाने को, मेट्रोलॉजी एंड वेल्डिंग। तो ये मैंने करीब करीब 92 में बनाया था, 92 में, यस। एंड द बुक वाज, एंड इट इज स्टिल देयर, द प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी बाय L.M. Gord, G-O-U-R-D, गॉर्ड, L.M. गॉर्ड। सो द प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी का ये बुक है। छोटा सा बुक था, लेकिन फिगर्स इतने अच्छे दिए थे कि मेरे को बहुत अच्छा लगे। मतलब उसमें ऐसा एक पेज दिया है पूरा, ये ऊपर प्रोसेस दिया है, बाद में सेटअप दिया है, और उसके ऐसे प्रॉपर्टीज दिए है, और नीचे एप्लीकेशन दिए। तो इतना मस्त है, मतलब एक ही पेज में पूरा प्रोसेस आपका कवर हो जाता है। तो मैं सोचा ये टीचिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। तो वैसा मैंने रेफर करके वो टाइम के ये बनाए हुए नोट्स है। ये प्लास्टिक स्लाइड पे पहले हम लोग प्रोजेक्टर पे दिखाते थे। यही स्लाइड बनाते टाइम मुझे केजे सोमया साहब ने शाबाश दी थी। एक बार वो आए थे अपने मेट्रोलॉजी लैब में, तो मैं ये स्लाइड बना रहा था। वो बोले मेरे को कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ये प्लास्टिक पे कागज पे क्यों नहीं लिखते?
तो उनको मैंने समझाया था ये फोटोपोन नाम का एक वो हमारा प्रोजेक्टर था वो टाइम, उससे ये कैसा दिखता है। हाँ ये फिर आप बच्चों को पढ़ाते हो क्या वगैरह। तो केजे सोमैया यानी जिनका अभी पुत्र है ना वो पद्म विभूषण अपने केजे साहब करम सिंह भाई, उन्होंने मेरे को शाबाशी दी थी वो टाइम। वो नीचे से आए थे मेट्रोलॉजी लैब में, वो 18 नंबर रूम है ना अभी अपना, जहाँ वो फिजिक्स लैब वगैरह आपका स्टूडेंट्स का रूम है, वो स्टूडेंट काउंसिल का, वो पहले मेरा लैब था। तो वो टाइम ये स्लाइड जब आती है तो मुझे वो याद आता है उनका। तो अपने मालक केजेसो में उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी कि भाई, फिर वो प्रिंसिपल को वगैरह बोल रहे थे भाई कितना अच्छा आदमी आपने भर्ती किया वगैरह वगैरह। चलो तो वो बोले हम लोग अभी ऐड में पेपर में ऐड देख के लाया इसलिए बाहर गांव से आए लोग वगैरह इसलिए मिल सके, अभी तक तो हम लोग रेफरेंस से इधर उधर से ले रहे थे। तो वो ऐसा उनकी बात चालू थी, तो प्रिंसिपल ने भी मुझे बोला बाबा शेठ जी बहुत खुश हो गए तुम्हारे ऊपर। तो मुझे वो शेठ जी याद आते हैं अपने, ये स्लाइड जब आती है ना तो मतलब वो दिखने लगते हैं वो पूरा मतलब ऐसा। करम सिंह भाई केजे सोमैया, यानी अपने जो समीर भाई है ना उनके समीर भाई मेरे उम्र के हैं, मेरे से 6-7 महीना छोटे हैं। उनका मतलब ये अजोबा, अजोबा यानी कि ग्रैंडफादर। वो वो टाइम वो आते थे कॉलेज में, वो टाइम पुरानी बात है, 92 की बात है ये। और मैं नया था वो टाइम, 25 साल का 26 साल का था मैं। एनीवे ये बात ये जो है MMAW और SMAW प्रोसेस, तो इसमें क्या है कि एक क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा, टाइप ऑफ ऑपरेशन। अभी हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग ऐसा स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है, मैन्युअल, ओके। अभी जहाँ पे ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है वो उधर वो आ जाएगा, लेकिन ये कैसा है, मैन्युअल। देन हीट सोर्स, आर्क, इट इज नॉट गैस, इट इज आर्क। शील्डिंग, फ्लक्स। आप बोलेंगे शील्डिंग दूसरा कौन सा है, दूसरा एक शील्डिंग रहता है गैस शील्डिंग। वो टिगमिंग वेल्डिंग बाद में हम लोग देखने वाले हैं ना, जो आपके एक्सपेरिमेंट में भी स्टडी करने हैं अपने को। हाँ? तो वो उसमें गैस शील्डिंग रहता है, आर्गन गैस का शील्डिंग रहता है, तो उसमें फ्लक्स नहीं रहता है। लेकिन ये प्रोसेस में MMAW में फ्लक्स रहेगा। करंट रेंज 25 to 350 एम्पियर, ये करंट रेंज में। कुछ कुछ प्रोसेस इसके बाद चालू होता है, मतलब उसका मेल्टिंग रेट है ना बहुत, कंटिन्यूअस वायर फीड जैसे मिग वेल्डिंग वगैरह, उसका करंट रेट बहुत हाइयर है, हाँ? तो रेट ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोसेसर्स के ज़्यादा है, ये मीडियम है, हाँ, 25 to 350 एम्पियर। जैसे ही करंट आपका बढ़ेगा वैसा वेल्ड डिपोजिशन रेट ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोड डिपोजिशन रेट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको तेजी से वेल्डिंग करना पड़ेगा और आपका फिलर मेटल जल्दी जल्दी भर जाएगा। हीट इनपुट 0.5 to 11 किलो जूल पर सेकंड। हीट इनपुट, हीट इनपुट रेट अगर हमने कैलकुलेट किया तो उसका फॉर्मूला है V इंटू आई अपॉन ट्रेवल स्पीड, ओके। मतलब V वोल्टेज into I, that is current, into efficiency of the process. Different processes have different efficiency divided by travel speed. मतलब कितने तेजी से आप इलेक्ट्रोड लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसका इसलिए जरूरी है कि आप अगर एक जगह ही ज्यादा देर रुके, मतलब स्लोली जा रहे हैं, तो आपका वेल डिपोजिशन रेट ज्यादा आ जाएगा ना। हाँ, अगर ट्रैवल स्पीड आपका थोड़ा फास्ट रहेगा तो वो वेल डिपॉजिट रेट आपका फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वेल। तो दैट हीट इनपुट और हीट इनपुट रेट इट इज इक्वल टू 0.5 to 11 किलो जूल पर सेकंड, यहाँ पे आपका नोट किया है। इसके लिए, ये प्रोसेस के लिए, MMAW के लिए। तो ये हीट इनपुट रेट बाद में मिग वेल्डिंग का, SAW का ज़्यादा है इससे, क्योंकि उसका करंट रेटिंग ज़्यादा है, मतलब वो प्रोसेसेस बाद में जो आएंगे, हायर लेवल प्रोसेस आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन रेट वाले प्रोसेस आएंगे। टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है भाई, ये सब आप देख लेंगे, फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल, चिप्स, स्ट्रक्चरल, ये तो है। प्लस ये इस प्रोसेस का क्या है मालूम है क्या, कंस्ट्रक्शन लाइन में रिपेयर ऑफ मशीन प्लांट के लिए ये यूज होता है। ये इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है मैं बोलता हूँ, दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोसेस। मतलब आप है ना, ये जो वायर है ना, एक जगह आपका ट्रांसफार्मर रहेगा या मशीन रहेगा, और आप उसका वायर अगर लंबा खींचे तो आप 40 फीट 50 फीट ऐसा दूर तक काम कर सकते हो, फील्ड वेल्ड में वगैरह। कोई टाकी है, कंस्ट्रक्शन है,
एट साइट यू हैव सम कंस्ट्रक्शन एंड उस पे कुछ टाकी वगैरह फिट करना है आपको, तो वो वहाँ पे लेके जाने में, या फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी दूसरी जगह में वहाँ पे ट्रांसफार्मर अगर लगाओ और वो आप इसको ये केबल वायर दूर तक लेके जाओ और वेल्डिंग करो, तो ये फ्लेक्सिबल बहुत है आपको, मतलब ये दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोसेस, इसीलिए ये बहुत यूज होती है। मतलब आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उसका पूरा सेटअप, आपको वो ये लेने की जरूरत नहीं, सिलेंडर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं, जो शील्डिंग गैस प्रोसेसेस में रहता है ना, शील्डिंग का सिलेंडर, आर्गन सिलेंडर वगैरह, हेलियम सिलेंडर, वो लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रोड पे ही वो डायरेक्ट फ्लक्स कोटिंग का प्रोविजन किया है, इसलिए आपके पास सिर्फ चाहिए इलेक्ट्रोड होल्डर और एक वर्कपीस, और वो इसको आपने जोड़ दिया इसके साथ, हाँ, मतलब यहाँ पे क्लैंप आपने कर दिया वर्कपीस को, तो आपका काम हो गया। साइट में आपको अर्थिंग नहीं मिलेगा, लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग वो ग्राउंड में स्थित है, तो ग्राउंड विल बी योर अर्थिंग इन दैट केस साइट में। एट साइट वेल्ड अगर कुछ करना है, अगर आपको कोई सपोर्ट में कोई एंगल चैनल उसको वेल्ड करना है, सपोर्ट स्ट्रक्चर जो रहता है फ्रेमवर्क वगैरह, इसके लिए ये बहुत कारगर है। तो ये टिपिकल एप्लीकेशंस दिए हैं, और उसमें आप लोग एक मेंशन करो यहाँ पे कि दिस पर्टिकुलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर साइट वेल्डिंग और साइट ऑपरेशन एट साइट, ऑपरेशंस एट साइट, वेल्डिंग ऑपरेशंस एट साइट, कि आप लोग यहाँ पे एक मेंशन करो लास्ट स्टेटमेंट। अभी क्या है, ये मैनुअल है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिख सकता, ये मतलब मैनुअल स्लाइड है उसका मैंने स्नैप मारा ना अपना और वो जोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर सकता, पीपीटी में कर सकता है, तो आप इधर एक ऐड करना हो एट साइट, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ मशीन प्लांट, एंड दिस प्रोसेस इज मोस्ट सुटेबल प्रोसेस फॉर साइट वेल्डिंग, ऐसा आप एक ऐड करना हो MMAW। अगला प्रोसेस की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट टिग वेल्डिंग। सो दिस इज अ टिग वेल्डिंग सेटअप। ये हम लोग अपना अभी MMAW जो है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, वो आपने फर्स्ट ईयर में किया है, तो सेकंड ईयर में हमको टिग और मिग वेल्डिंग करना था, तो उसमें से टिग वेल्डिंग अभी हम लोग ले रहे हैं। सो टिग वेल्डिंग, टिग व्हाट इज टिग? सो टिग इज बेसिकली टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये टिग मिग वेल्डिंग ये पुराने नाम है अपने, जैसे यूरोप में दिए गए नाम, तो अमेरिकन को थोड़ा नाम अपना अलग देने का एक आदत है ना, जैसे MMAW को SMAW बोला, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग बोला था ना, ये देखो ये कहाँ गया वो, हाँ ये बोला था ना, ये देखो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, उसको अमेरिकन बोलते हैं शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब अमेरिकन बुक आपने अगर पढ़ोगे तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग रहेगा, और ब्रिटिश बुक्स इधर के पढ़ोगे तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग रहेगा। हम्म, तो वो ऐसा है, दोनों नाम मतलब एक ही प्रोसेस है। सिमिलरली मिग के लिए अपना टिग 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 वेल्डिंग के लिए यूरोपियन नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसी को अमेरिकन कहते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ओके, तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें टी टंगस्टन होना चाहिए, तो व्हाट इज द टंगस्टन? टंगस्टन इज हियर द इलेक्ट्रोड। ये देखो ये जो टॉर्च है ना, ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च, और बाद में ये जो कनेक्शन दिए है ना, ये टू द स्केल नहीं है, ये टॉर्च है ना, ये अगर ये ऐसी छोटी सी है तो इसको ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन ऐसा लंबा है, और सिलेंडर तो बहुत बड़ा है अपना, लगभग 5.5 फीट, 5 फीट तक बड़ा है अपना सिलेंडर इसका, आर्गॉन का। ब्लू, आर्गॉन इज ब्लू इन कलर, तो ये शील्डिंग गैस सिलेंडर है ना, इससे ये शील्डिंग गैस ऐसा ये टॉर्च तक आता है, ये टॉर्च ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लोडेड व्यू दिखा है बड़ा करके, और यहाँ पे सेक्शन दिखा है। सो दिस फिगर इज वेरी गुड, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ बच्चों आपके लिए, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, और भी बड़ा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, हाँ ये देखो अभी एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ, हाँ, तो ये टिग वेल्डिंग सेटअप है आपका। ये क्या लिखा है यहाँ पे? स्केच, schematic representation of the equipment. Yes, so inert gas supply, so this is a argon or argon helium mixture, or that is used, so many shielding gas or shielding gas mixtures are available, उसके ऊपर आप लिटरेचर में देख सकते हैं।
मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया था, एमटेक का मेरा प्रोजेक्ट इस पे था, मिग वेल्डिंग पे था एक्चुअली वो। तो ये वेल्ड मशीन है आपका। इसमें एक खासियत है कि आप डीसी वेल्डिंग करते हैं, मतलब आपको एसी टू डीसी ट्रांसफर करना पड़ेगा करंट। तो आपका रेक्टिफायर यूज करते हैं इसमें, मतलब जैसे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में आप लोग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते थे, ट्रांसफार्मर यूज होता था। यहाँ पे आपको रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा, वेल्डिंग रेक्टिफायर। तो इसको आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट। तो वो करंट हम यूज कर सकते हैं टिक वेल्डिंग के लिए। एंड यू कैन सी हियर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये अंदर का जो है ना टंगस्टन इलेक्ट्रोड, देखो ये एक फाइन टिप रहता है ऐसा टंगस्टन का, पूरा शार्पनिंग किया हुआ एकदम फाइन टिप रहता है ऐसा, आपका पेन का रहता है ना, पेन या पेंसिल शार्पन करने के बाद रहता है ना वैसा एकदम, देखो ये फाइन टिप है ऐसा। हाँ, तो ये फिगर वगैरह ड्रॉ करते टाइम आप लोग ध्यान देना, बहुत से तुम्हारे टेकमैक की बुक में ऐसा राउंड दिखा है, वो राउंड नहीं रहता है कभी, हमेशा शार्प एज रहेगा। हम अपने वर्कशॉप में भी आपको दिखाएंगे। तो जब ये टच होता है ना बार बार वेल्डिंग करते टाइम हमारे हाथ से, वेल्डर तो एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन हम लोग जब वेल्डिंग करते टाइम वो हमेशा टच होता है रे इसको, वर्क पीस को, क्योंकि हमारा हैंड एकदम स्टेडी नहीं रहता है ना, प्रैक्टिस नहीं रहती हमको। तो उसको बार बार शार्पन करना पड़ता है यहाँ जाके। वो उधर एक ग्राइंडिंग बेंच ग्राइंडर उधर भी है, जैसा हमने बेंच ग्राइंडर मशीन शॉप में, वैसा एक बेंच ग्राइंडर वेल्डिंग में भी है, वो इलेक्ट्रोड को रीशार्पन करने के लिए यूज होता है। और ये देखो ये तुम्हारा टॉर्च है, इसको एक्चुअली इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड, इसको ये दिस इज नोन एज योर वेल्डिंग गन, टिग वेल्डिंग गन। टिग वेल्डिंग टॉर्च भी बोलते हैं, टिग वेल्डिंग गन भी बोलते हैं। तो टिग वेल्डिंग का ये जो पोर्शन है, ये इलेक्ट्रोड है। ये इसको हमेशा इधर और यहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो ऐसे इसको एक ऐसे टोपी रहेगा, यहाँ पे कैप रहेगा, सिरेमिक कैप ऐसा, पिंक कलर की ऐसी एक कैप रहेगी। वो ऐसा यहाँ पे दिखाई नहीं है वो, ऐसा ऐसे यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगी यहाँ पे। तो वो इलेक्ट्रोड वहां तक जाके आपका उसको सपोर्ट मिलेगा ऐसा। बेयर इलेक्ट्रोड यहाँ पे आएगा तो आपको शॉक लग सकता है, इसलिए उसको वो सिरेमिक कैप है। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोड बाद में उसका थोड़ा सा शार्पनिंग वगैरह करके उसका लेंथ कम हो जाएगा ना, उसको आप आगे ढकेल सकते हैं। अभी आप बोलेंगे ये सर क्या इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल। टंगस्टन में दिस इलेक्ट्रोड इज नॉन नॉन कंज्यूमेबल। तो आप बोलेंगे फिर फिलर वायर वगैरह भरना है तो फिलर वायर आप सेपरेटली डाल सकते हैं। तो इसका सेटअप कैसा रहता है, ये 70 डिग्री रहेगा टॉर्च, और फिलर वायर 20 डिग्री रहेगा। तो दोनों को बीच में आपको 90 डिग्री रहेगा। तो ये वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जो गैस है, ये गैस ये इलेक्ट्रोड के अराउंड ऐसा चला जाता है। तो क्या होता है, ये जो आर्गॉन गैस है ना वो हेवी है, ये शील्डिंग गैस जो रहता है दैट इज हेवियर। तो इट आउटविट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस एरिया ऑफ वेल्डिंग, सो इट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट्स द वेल्डिंग। इसको निगेटिव में कनेक्ट करते हैं। ये जो टॉर्च है ना, ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रोड है ना, वो निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और वर्कपीस को पॉजिटिव में। नेचुरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल बी जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव आयंस फ्रॉम वर्कपीस। तो पॉजिटिव आयंस यहाँ जाने की कोशिश करेंगे इन दैट आर्क ट्रांसफर, एंड यहाँ पे से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे किस पे, वर्कपीस में। तो वर्कपीस का जो भी पोर्शन आपको मेल्ट करना है, तो वो पोर्शन दोनों जो ये है, टू पीसेस ऑफ वर्क पीसेस, वो एक दूसरे के पास लाएंगे, उसके ऊपर हम लोग ऐसा टॉर्च ये करेंगे। मशीन चालू होने के बाद आर्क विल बी एक्सटिंग्विश, क्योंकि वर्कपीस को पॉजिटिव कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रोड को निगेटिव कनेक्ट किया है, तो आर्क विल बी एक्सटिंग्विश्ड बिटवीन दैट, सर्किट पूरा करने के लिए। एंड फ्रॉम इन दैट अगर हमने ये फिलर वायर ऐसा पकड़ा, 20 डिग्री में है वो, एंड इफ यू गो ऑन डूइंग द वेल्डिंग ahead, electrode will melt, it will be electrode molten metal will be filled in the weld gap। जो दो पोर्शन एक दूसरे को जोड़ना है, उसमें से थोड़ा सा एज ऐसा तैयार करके, जैसा वी एज प्रिपरेशन कल हमने देखा, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और वो इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होता है वो उसमें आपका आ जाएगा, वेल्ड पुडल कहते हैं उसको, वेल्ड पुडल, वेल्ड मेटल उसमें गिर जाएगा।
वो खुद तो मेल्ट होता ही है, वो साइड वाले दो पार्ट्स को भी मेल्ट कर देता है जो हमको ज्वाइन करना है। तो जो जितने पोर्शन तक उसका हीट इम्पिंज होता है अंदर, उसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। उससे थोड़ा सा उसका माइक्रोस्ट्रक्चर भी चेंज होता है, मतलब थोड़ा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ओरिजिनली है वो, सडन हीटिंग कूलिंग से आपका कोर्स ग्रेन होएगा। सो इससे थोड़ा प्रॉपर्टी आपका अलग रहेगा बेस मेटल से। बेस मेटल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। वेल्ड मेटल में उतनी प्रॉपर्टी लाने के बाद उसको लाने के लिए फिलर मेटल में वो एलोइंग एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना आपको जरूरी है। इसमें फ्लक्स नहीं रहेगा, इसमें फ्लक्स के बजाय इनर्ट गैस रहेगा। तो आपको ये जो फिलर वायर है उसी में एलोइंग एलिमेंट डालना पड़ेगा फिर। ऐसे फिलर वायर के दैट फिलर वायर इज अवेलेबल फ्रॉम 0.6, 1.6, 2.15, 2.5, 3.15, ऐसे अलग अलग डायमीटर में अवेलेबल। 3.15 के बाद 4 mm है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, ऐसा 6 mm, 6.5 mm तक भी अवेलेबल है। बड़े बड़े हैं टिग वेल्डिंग में, साढ़े साढ़े 6 mm तक नहीं रहता है। टिग वेल्डिंग में 3.15 तक ही रहता है, क्योंकि बेसिकली टिग वेल्डिंग इज डिजाइंड फॉर इंट्रिकेट जॉब। ये इतना क्लीन प्रोसेस है ना, इसमें मतलब ऐसा स्पैटर वगैरह ऐसा पट 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 नहीं उड़ते जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में उड़ते हैं ना, ऐसा स्पैटर वगैरह वेल्डिंग करते टाइम हार्श आर्क नहीं रहेगा, एकदम स्मूथ आर्क रहेगा। तो ऐसा वो मेटल कैसे पे ऐसे चीटे चीटे जो गिरते हैं ना, जैसे फुलबाजे में वगैरह, तुम लोग दिवाली में वो जो फुलबाजा उड़ाते हैं ना, ऐसा दिन दिन दिवाली बोल के तुम घुमाते हैं ना बच्चे वो तुमको, तो वैसा अपने बिल्डिंग में भी वो ऐसे चीटे उड़ते हैं। आपने कभी ग्रिल वगैरह रिपेयर करते टाइम या अपने बिठाते टाइम घर में देखा होगा। तो वो जो चीटे पड़ते हैं ना, उसको कहते हैं स्पैटर। तो ये स्पैटर वगैरह ये टिग वेल्डिंग में बिल्कुल नहीं, एकदम स्मूथ प्रोसेस है ये, एंड साउंड प्रोसेस है। डिफेक्ट्स कम आते हैं, क्योंकि ये आर्गॉन गैस हेवी रहता है ना, तो ये आर्गॉन गैस बाकी सब गैसेस को आउटविट कर देगा। मतलब यहाँ से वो आर्गॉन गैस फ्लो आएगा। आर्गॉन इज हेवी इन नेचर, एंड आर्गॉन इटसेल्फ इज इनर्ट। तो वो कुछ होने नहीं देगा, ना ऑक्साइड, ना तुम्हारा नाइट्राइड, ना तुमको पोरोसिटी आने देगा, और बाकी सब गैस को वहां से हकाल देगा। इसीलिए आर्गॉन शील्डिंग ये बहुत अच्छा माना जाता है। टिग वेल्डिंग बहुत ही अच्छा माना जाता है क्वालिटी वाइज। एल्यूमिनियम के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए तो वरदान है। जब शुरू में ओराइन चालू हुआ था, तो ओराइन वाले बच्चे मेरे पास आए थे, उनको मालूम था ना कि बाबा ये वेल्डिंग में, मैंने इसी एरिया में 4 साल वो काम किया ना शुरू में, तो ये एरिया में मैं सुपरवाइजर था, डायरेक्ट जॉब सुपरवाइजर। मेरे को मतलब सुपरवाइजर मैं इसलिए खुद को कहता हूँ कि वो एक्चुअली मैं प्रोडक्शन इंजीनियर नाम का मेरे को पोस्ट था, लेकिन काम तो मैं सुपरवाइजर का ही कर रहा था, क्योंकि ये सब आने के बाद वर्कर लोगों को काम बांटना, उनके साथ वो सब स्टडी करना, बाद में सब उसका कौन सा आदमी किस में एक्सपर्ट है उसको वो काम लगाना, फिटर्स को काम लगाना, असेंबली वालों को लगाना, हेल्पर को काम देना, ये सब सुबह 6 बजे वो जो शिफ्ट चालू होती है 5:30 6 बजे चालू होते है, वो बहुत जल्दी उठना पड़ता है भाई। वो क्या दिन थे वो, खतरनाक दिन थे वो। रहता क्या और था, थर्मैक्स में भी मैंने काम किया, तो उसमें वही काम हमारा रहता था कि वो लोगों को काम देना वगैरह। तो फिर उधर मैं ये सब स्टडी करता था, तो ये सब मैंने ये बहुत देखा है ये। इसमें मतलब मेरी स्टार्टिंग वाली जिंदगी इसी में गई है। मैं गलती से बाद में ये फील्ड में आ गए, वो उनके सब यूनियन वाले और मैनेजमेंट के पॉलिटिक्स, वो तो हर जगह, वो छोटा नहीं भाई इंडिया में कहीं। तो उससे कंटाल के मैं एजुकेशन में आया एक्चुअली, नहीं तो इसी फील्ड में रहने वाला था, फैब्रिकेशन, मशीनिंग। तो उस समय मैंने ये सब देखा है। तो हाँ, और एक है ना, ये टिग वेल्डिंग इज वेरी क्लीन। तो ओरान वाले बच्चों ने पूछा कि भाई हम लोग वो टाइम में कार्बन नैनो वगैरह इतना नहीं था डेवलपमेंट, तो लोग बोले तो हमको कंपटीशन में जाना है, तो हमको वजन कम रखना है इसका, इसलिए हमने एल्यूमिनियम वेल्ड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम का एक कोई एलॉय भी था, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिक्स, उसमें पावर बहुत रहती है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। तो वेल्डिंग हम कौन सा करें, दोनों अवेलेबल है, मैनुअल मेटल भी है और टिग है। अब मैंने उनको वो टाइम वो सजेस्ट किया था कि आप टिग वेल्डिंग के लिए जाओ। टिग या प्लाज्मा भी बोलते हो, तो प्लाज्मा में की जरूरत नहीं हमको, टिग वेल्डिंग थोड़ा सस्ता पड़ता है, प्लाज्मा वेल्डिंग का रेट ज़्यादा है पर आवर का। तो बोला आप उससे जाओ, मैनुअल मेटल से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेंगे, लेकिन आपको वो कट नहीं रहेगी, ये ब्रेक नहीं होगा, आपको रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल मेटल वेल्डिंग का अगर आप एल्यूमिनियम का करोगे तो उसमें ऑक्साइड का प्रॉब्लम बहुत आता है। हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगा, फ्लक्स रहेगा तो भी आपको वो प्रॉब्लम आएगा। इससे
क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत सेंसिटिव है। तो आप अगर वो टिग वेल्डिंग करोगे तो ज़्यादा सुटेबल रहे। तो बच्चों ने वो टाइम माना था, वो उनको इंडस्ट्री वालों ने फिर वही सलाह दे दी। तो बच्चे बड़े खुश हो गए कि तब से बहुत साल वो टिग वेल्डिंग चल रहा था। नीचे वाला जो चासिस का ये रहते ना वो, उसके ऊपर वो जो जहाँ पे वो पूरी बॉडी बैठती है वो पूरा पतरा वो पहले इसका रहता था। अभी भी मैं शायद वही है, लग देखा नहीं मैंने अभी क्या सिचुएशन है, अभी ओरान गया नहीं। हाँ? तो अभी वो कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह वो सब आ गए, सब मटेरियल नए नए। हाँ, ये हाई स्ट्रेंथ और लो वेट, मतलब हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, दैट वो मटेरियल सब अभी आ गए, कार्बन इसका कार्बन फाइबर्स। ओके। तो सो ये टिग वेल्डिंग के बारे में मैं बता रहा था। और वो स्टार्ट में क्या करते हैं, ये टंगस्टन है ना, टंगस्टन का टिप एकदम शार्प रहता है। तो ये टंगस्टन डायरेक्ट यहाँ पे वर्क पीस पे ऐसा आप टच करोगे तो वो टंगस्टन पिकअप आने का चांस है, टंगस्टन का ऐसा टुकड़ा यहाँ पे गिरने का चांस है। तो ये क्या करते हैं, एक थोड़ा सा स्मूथ मटेरियल कॉपर का एक ऐसा पीस रहता है, उसको बाद में ऐसा हो उसको ऐसा सपोर्ट भी रहता है एक ऐसा ये पकड़ने के लिए। तो कॉपर का ऐसा पीस नजदीक में लाते हैं, उस पर पहले आप आर्क स्ट्रक करोगे एंड देन यू ट्रांसफर टू द वर्क पीस। मतलब वर्क पीस के पास ऐसा एक कॉपर का ऐसा ये पीस पकड़ेंगे, उस पर आप कॉपर स्मूथ है ना थोड़ा, तो उस पर मतलब हार्डनेस कम है उसका, तो उसके ऊपर ऐसा टंगस्टन को ऐसा ऐसा टच करोगे, जैसे आर्क एक्सटेंड हो गया, आप उसको बॉडी पे लेके जाएंगे इसमें। ये भी करते हैं। कुछ कुछ एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे टच करके वापस आ जाते हैं। हम जैसे लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं रहती, तो हम लोग डायरेक्ट आप टच करते हैं ना, तो ये टिप्स है ना अपनी डैमेज होती है और ये पूरे ऐसे राउंड हो जाते हो। तो बार बार वेल्डर बेचारा जब उसको निकालता है और जाके ग्राइंड करके आता था। लास्ट टाइम तुम्हारा जो प्रैक्टिकल चालू था ना सेकंड ईयर का, वो टाइम वो बेचारा बार बार जाता था, तो वो मैंने देखा है। एक एक चीज मेरे को इसका डिटेल याद आ रहा है अभी, जैसे आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये टिग वेल्डिंग का अपने इसमें प्रैक्टिकल है अपने इसमें, और वो अपने वर्कशॉप में। तो अभी कल मैंने कुछ न्यूज़ सुना, 21 या 22 सितंबर से सरकार बोल रही है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अगर आना है तो आ जाओ, ऐसा 9 to 12 वालों को वगैरह, ऐसा कुछ तो मैंने मराठी न्यूज़ में सुना। अभी देखेंगे अगर आप लोगों को अक्टूबर में, ये तो सितंबर चल रहा है ना, अगर अक्टूबर में आपका मतलब कॉलेज चालू होने का अगर चालू किया ना ये लोग, तो वेल्डिंग का एक्सपेरिमेंट अपन उधर ले लेंगे। मतलब हाँ, ऐसा ऐसा हमारी इच्छा है। अभी देखेंगे कैसा कैसा सिचुएशन, ये टिग वेल्डिंग का और मिग वेल्डिंग का आप लोग ले सकते हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोग, हैं? तो वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये ऐसा हाथ में पकड़ने के लिए होल्डर है। ये आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसके बाजू का वो सब शील्डिंग, उसको पैक करने के लिए ये सब ऐसा इंसुलेटिंग शीट कहते हैं इसको। ये बाजू में जो गैप है, ये क्रॉस सेक्शन दिया है, मतलब ये सब सर्कुलर है। तो ये जो गैप है वहाँ से, ये देखो यहाँ कट सेक्शन दिया है, तो ये वहाँ से आर्गन आपको शील्डिंग के लिए मिलेगा। तो ये बहुत फाइन प्रोसेस है, मतलब दिस इज सो नाइस, मीन्स स्मूथ प्रोसेस। तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा अभी देखेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका प्रॉपर्टीज, टिग वेल्डिंग का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेशन मैनुअल, यस, हीट सोर्स आर्क, शील्डिंग, इनर्ट गैस आर्गन हेलियम एक्सेट्रा यूज होता है। करंट रेंज 10 to 300 एम्पियर, मतलब इसका एक्चुअली करंट रेंज मतलब कम है, मतलब आपको है ना, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूज फॉर इंट्रिकेट जॉब्स। जैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वगैरह था ना इंट्रिकेट जॉब के लिए, वैसा टीग वेल्डिंग इज फॉर मोस्टली सुटेबल फॉर थिनर थिनर जॉइंट्स, मीन्स अप टू 5 mm वर्क है, 5 और 6 mm तक जो वर्क है आपका वेल्डिंग का, उसके लिए ये सुटेबल है। इसका बेसिक का ऐसा है कि क्वालिटी बहुत अच्छा है। रूट रन है ना, रूट रन यानी पहला रन जो है वेल्डिंग का, रूट जो रूट यानी कौन सा पोर्शन, ये जो वी मारते हैं, तो वी का जो स्टार्टिंग का जो पहला वाला रन रहता है ना, तो उसको कहते हैं रूट रन। कभी कभी वेल्डिंग जॉइंट बड़ा रहता है, तो वो बड़ा रहेगा, थिकर थिकर प्लेट पे क्या हो जाएगा, वेल्डिंग जॉइंट बड़ा रहेगा,
तो पहला रन जो मारता है ना, तो बहुत से पार्टीज बोलता है हमको टिग वेल्डिंग ही मार के दे दो पहला रन। तो क्योंकि रूट में है ना शार्प एज होने के कारण आपका डिफेक्ट ज्यादा आने का चांसेस रहता है, स्ट्रेस वगैरह वहाँ ज्यादा क्रिएट होते हैं क्योंकि शार्प एज है ना। तो पार्टीज कहते हैं कि आउटसाइड पार्टी जो वर्कशॉप में ऑर्डर देते हैं हमको इंडस्ट्री में, तो वो बोलते हैं कि हम पैसा दे देंगे आपको, लेकिन मतलब पहला रन है ना हमेशा रूट रन मारो। ये मारो रूट रन, हमेशा टिग वेल्डिंग का मारो। बाद में आप उसमें मिग वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है ना, ये मतलब बहुत इसका नाम है इसके लिए, एक्यूरेसी के लिए, और इसके लिए अपना डिफेक्ट फ्री प्रोसेस के लिए 100% रेडियोग्राफी आता है इसमें। डिफेक्ट आने का चांसेस कम है। अगर अच्छी तरह से वेल्डर ट्रेन होना चाहिए, ऑफ कोर्स 2-2 साल के ट्रेनिंग है इसके। टिपिकल एप्लीकेशन हाई क्वालिटी वेल्ड इन मेटल सच एज एल्यूमिनियम, एसएस, निमोनिक alloys, then copper in chemical plants, sheet work in aircraft engines and structures। तो ये बेसिकली ये जो हल्का काम है ना, हल्का यानी लाइट वेट वाला, उसके लिए बहुत सुटेबल है ये टिग वेल्डिंग प्रोसेस। 70-30, 70 और 20, ये जो एंगल है ना, ये आपका ये टॉर्च का एंगल 70 है, फिलर मेटल का 20 है। अभी आप देखोगे ये दोनों के बीच का 90 हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 है, तो ये दोनों 90 रहेगा। फिर वो इसको जब ऐसा हिलाते हैं, तो इसको जब आप नीचे करते हो तो इसको थोड़ा ऊपर करते हो, फिर इसको नीचे करते हो, फिर इसको ऐसा करते करते आपको हिलाते हिलाते आपको वेल्डिंग आगे क्लियर करना है। जैसा आप ड्राइविंग करते टाइम वो हमेशा आपका स्टेयरिंग व्हील थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिलाते हैं ना, वैसा ये प्रोसेस करते टाइम पे भी आपको थोड़ा सा ऐसा रॉकिंग करना पड़ेगा, ऐसा स्विंगिंग थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ये दोनों को। बट ये दोनों का बीच में 90 बराबर रहेगा। तो इसको ज़्यादा ऊपर उठाना ठीक नहीं है इसको, फिलर मेटल को। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, फुल पेनिट्रेशन है ये जो वर्टिकल ये 70 डिग्री है ना, तो यहाँ पेनिट्रेशन फुल होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट होके यहाँ पे आएंगे ना, ये निगेटिव को कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होके यहाँ पे अच्छा पेनिट्रेशन आएगा आपका। ये ये जो प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका जो रिकॉर्डिंग अभी है ना, तो ये रिकॉर्डिंग आपको बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये इतना सब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये मेरा नेचुरल नॉलेज से मैं जो दे रहा हूँ ना, बहुत ये ऐसा, फिर बुक्स में पेजेस के पेजेस भरे हैं, उसमें वो सब दिया है। तो अभी आपके पास बुक नहीं है, तो मेरे वो रिकॉर्डिंग आप सुनते रहना कि टिग वेल्डिंग है तो सर ने क्या क्या बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग आपको बड़े काम आ जाएंगे। अभी कल से कुछ बोला है, ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आएंगे, हमको वो डाउनलोड करके भेजना पड़ेगा वगैरह, ऐसा कुछ चल रहा था कल। वो पवार सर ने एक मेल लिखा था कि ऑटोमेटिक पहले कैसा आपको मिलता था, वो सिस्टम बंद हो गया अभी। देखना पड़ेगा हमको बाद में ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है वो मालूम नहीं। मेरे को लगता है माइक्रोसॉफ्ट टीम में वो आता है, टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम में आप लोगों को एक्सेस है ना, तो आप लोग भी डाउनलोड करो अगर इसको। मैं भूल जाता हूँ ये सब, बहुत रहता है ना मेरा ये, इसके बाद और एक प्रैक्टिकल, फिर वो दूसरे सब्जेक्ट का सॉम का रहेगा, फिर मेट्रोलॉजी का रहेगा, फिर 3rd ईयर में घुसता हूँ, तो मैं भूल गया, तो आप लोग कर दो। आपको एक्सेस है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, शायद है आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम में, अगर आप वो टीम में है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना और यूज कर लेना। मुझे क्या है, मैं कभी भी मेरे पास खुद के पास उसका इंफॉर्मेशन नॉलेज है, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है वैसे। आप लोगों को उसका यूज होता है तो आप लोगों केयर ले लो, मतलब आप लोगों के लिए है बेसिकली ये। हाँ, तो आज है ना, ये अपना टिग वेल्डिंग पूरा हो गया। अगले टाइम अपने को स्टडी करना है मिग वेल्डिंग। तो ये मिग वेल्डिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको उसका लॉन्ग फॉर्म बताता है। मिग वेल्डिंग और एसएडब्ल्यू का स्लाइड है ये, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोल के एक है वो। पहले मिग वेल्डिंग बताते हैं। मिग मतलब जैसा टिग वेल्डिंग है वैसा ये मिग वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग में मेटल इनर्ट गैस, मतलब कंज्यूमेबल मेटल रहेगा। अपने टिग में क्या था, टंगस्टन इलेक्ट्रोड which was non-consumable, but in MIG welding metal inert gas, so this is a metal consumable metal is used, metal inert gas, and that process is also known as GMAW। जैसा वो GTAW था, वैसा ये GMAW, ये अमेरिकन नाम है।
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये मेटल इनर्ट गैस। वो क्या था, टंगस्टन इनर्ट गैस, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। दिस इज मेटल इनर्ट गैस, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ये प्रोसेस इन डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला लेक्चर शायद अपना मंडे को होगा, वो टाइम हम लोग इसको देखेंगे। ओके, नाउ हम व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ऑन अटेंडेंस एज यूजुअल। एक मिनट, एक अटेंडेंस हम लोग ले लेंगे और एक ले लेंगे, रहने दो अपने पास रिकॉर्ड। एक टॉप, एक कट पेस्ट करके उधर जोड़ देता हूँ मेरे रिकॉर्ड में, एक इधर रहेगा अपने डाउनलोड में। इसका एक्चुअली मैन्युअल एंट्री करने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अभी हम लोग एक स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग। ओके, हम लोग स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टॉप।